Hi, evening friends, evening everybody, bache, evening everybody. I guess we know each other pretty well. I'm Dr. Sushant Soni, MBBS MAMC, MD Pathology, Resident Hemato-Oncology, AIMS Delhi. And अच्छा लग रहा है degrees बोल के. I am saying so because today you guys have given the paper. And very soon तुम्हारे name के आगे भी you are going to have these wonderful degrees in front of you. It always feels nice, pata hai. So before I even start the pathology recall, before I even start the pathology discussion, we have talked with many students. We have gotten few reviews, but this is a very interactive session. So please do tell me. सबसे पहले, how was the paper? What we have received is it was a moderate level paper. Mainly the questions that came as usual were from obs gynae. You had lots of questions, I guess about 30 to 35 questions from obs gynae. PSM बहुत सारा था, 30 to 35 questions. Path and micro were on the lower side. Path and micro was probably 6-7 questions. Path had about 10 to 12 questions and so on. But one thing is certain, जो हम लोगों की नैया पार लगाता है ना, इट इज ऑलवेज सी व्हेन वी गेट स्टक. आई एम श्योर यू गाइज नो दिस. व्हेन वी गेट स्टक, वी आर यूजुअली स्टक एट अ स्कोर ऑफ 135 to 140 to 149. This is the worst score to be stuck. And path, micro, pharma, ये वाले subjects ना हमारी नैया पार लगा देते हैं. So let us start with our pathology discussion. Good things happen in life. Our last time's result, the June mid-year 2023 result was on the lower side. I know many of you gave the paper last time, you attended again and you are giving it this time. But मुझे एक चीज पता है, and I am saying this with a lot of positivity. We are going to pass and this result is going to be मतलब अच्छा सा 38-40% pass percentage. Let us actually keep our fingers crossed for this result. Give me a like or give me a heart if you agree with this positivity कि हाँ सर हमारा पेपर ठीक गया. So good things happen in life. Last time गड़बड़ हुआ था हमारे साथ. The pass percentage was hovering around 8-10%, but this time it's going to happen. Love is real. इस चीज पे आई एम गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. आई एम अ गाय बट एवर होपफुल, बट दिस अगेन इज अ फैक्ट. वी विल बी ओके इन लाइफ. सो श्रेया, बच्चे पैथ, आई नो थोड़ा सा ना पैथ के जैसे क्वेश्चंस पूछे गए. एक्चुअली श्रेया एंड मानसी, बच्चे जैसे पैथ के क्वेश्चंस पूछे गए ना, दे वर ऑन द एक्सट्रीम एंड्स. मतलब या तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पूछा गया या अच्छे से पढ़ा हुआ. आई विल बी टेलिंग यू दोज. जैसे ऑक्ट 3 ऑक्ट 4 था. आई नो, देखो बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स आर ऑलवेज नीडेड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. देयर इज नो डाउट. देखो किसी को ब्लेम नहीं करना है. नहीं देखो लाइफ में मुझे एक चीज पता है, हम लोग वॉरियर्स हैं, हम लोग फाइटर्स हैं. हम लोग ना लाइफ में कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते, पहली चीज. दूसरी चीज, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्टक. हम अगर ठीक है पैथ में थोड़ा सा शुभम आए, 100% एग्री. क्वेश्चन थोड़े से डिवाइडेड थे एंड नहीं कोई बात नहीं. लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन पार्ट. हम लोग किसी को कुछ ब्लेम नहीं करेंगे. लेट अस स्टार्ट. A young male with testicular lesion underwent high inguinal orchidectomy. ये वाला तो अपना PYQ था बच्चे. This was a PYQ because if in a young male if orchidectomy is being performed, obviously it is a tumor. So अगर nesting pattern नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं. OCT4 even if we don't know, doesn't matter. Most common testicular tumor, seminoma. So the answer was seminoma. Next, which gene is affected in Reuters? I know this is where concepts and going in slight depth comes into picture. HLA-B27, हमें पता ही है. HLA-B27, ankylosing spondylitis, reactive arthritis, Reuters syndrome and psoriatic arthropathy. मुझे ना साथ साथ में बताते जाना कि 10-12 ही आए. अंकित, I agree. Rajiv dost, these are the questions that we have gotten by the first recall. So क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन है तो साथ साथ प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता देना. नेक्स्ट, अंकित, आई नो यू पर्सनली ऑल्सो दोस्त. आई नो यू पर्सनली. सो आई नो पैथ के क्वेश्चंस कम आए, तुमने थोड़ा सा कोई बात नहीं.
सो शुभम एंड डॉक्टर हेल्प, बच्चे जो भी क्वेश्चन में चेंज है और जो भी ऑप्शंस नहीं पता मुझे साथ साथ बता दो. Next question, net. This, acha, another thing that we saw was easy NEET PG questions were repeated. इसीलिए whenever we do a class, whenever I do a class with the FMG batch also, last day में ना last 3-year questions are always done. Okay, agreed. Seminoma का question नहीं था. ठीक है, agreed. This was a question that we got by recall. Fair enough. We take this out. नेक्स्ट यार आई नो जो थोड़ा सा रिकॉल हुआ या द आई कन्वे इट टू द मैनेजमेंट में एक बार बात कर लूंगा. आई कन्वे इट टू द मैनेजमेंट. बट आई नो कि इजी नीट पीजी क्वेश्चंस ना जो लास्ट 3 years के थे वो चीजें कवर होनी चाहिए थी. I'll have a talk. अभी हम लोग the older students and the students जो who have studied with me, let's have a look at that. Net. Neutrophil extracellular traps. Neutrophils are getting trapped extracellularly in a fibrillary meshwork. तो ये कहाँ पे देखा जाता है? Infections में देखा जाता है. It is seen in bacterial sepsis. I am telling you कि इसके right answers क्या क्या हैं. ये NEET PG last year NEET PG question था. इसमें nuclear DNA होता है. It was न्यूक्लियर डीएनए. फाइब्रोएडिनोमा की स्लाइड थी एक. ओके शुभम, मेरे पास दोस्तों स्लाइड वाला नहीं है बट आई हैव अ ब्रेस्ट क्वेश्चन, हम उस पे जाएंगे अभी. सो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स में न्यूट्रोफिल्स एंट्रैप हो जाते हैं फिब्रिलरी मेशवर्क में इन अ केस ऑफ बैक्टीरियल सेप्सिस. कौन सा न्यूट्रोफिल किल हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रोफिल इज ट्राइंग टू किल द बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया भी कुछ न्यूट्रोफिल्स को किल करेगा तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियर डीएनए ट्रैप हो जाता है एंड इट इज अ साइट ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन. सो ऑटो इम्यून डिजीजेस कहां से, जैसे SLE की कहां से स्टार्ट होती हैं? न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप से. नेक्स्ट, हर पेपर में एक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव बीन राइट. ट्रांसलोकेशन 922. प्रोटीन कौन सा बनता है? BCR ABL. और इसमें वो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ना कि स्प्लिनोमेगेली हाई TLC विद शिफ्ट टू लेफ्ट विद स्प्लिनोमेगेली CML. तो ये वाला तो हम सबका ठीक होना ही था. नेक्स्ट, अब आई नो कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें व्हाट हैपेंड वाज कि आइडेंटिफाई द इमेज. अब देख के ही पता चल रहा है कि ये कैंसर का इमेज है. सो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा तो है नहीं, एडिनो कार्सिनोमा भी नहीं है. एडिनो में ग्लैंड बनते हैं, स्क्वामस में केराटिन पर्ल आता है. इसमें क्या आ रहा है? ब्लू कलर के सेल हैं विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स. बेसल सेल कार्सिनोमा. लास्ट ईयर्स नीट पीजी क्वेश्चन. रामेश्वर, आई नो दोस्त, बीच में हाँ FMG सेगमेंट में जो कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नए, मतलब आई टुक द फर्स्ट बैच, जो नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, थोड़ा सा इशू आया. we'll have a talk. So identify the histopathological image. This is last year's NEET PG question. Peripheral palisading of tumor cells, that is basal cell carcinoma. Next question. Teenager was brought to OPD, delayed puberty with delayed secondary sexual characteristics, widely spaced nipples. Last year FMG का PYQ. Turner syndrome का diagnosis भी. Examiner told you it is a case of Turner's. So mutation in chromosome, that is, it is trisomy 13. Fair enough. This is what Turner's looks like. You know that कि widely spaced nipples हैं, cubitus valgus है, peripheral edema at birth, primary amenorrhea. So एक और क्वेश्चन आया था जिसमें हाँ आके दोस्त ये वाली इमेज नहीं पूछी गई थी, बट द क्वेश्चन वाज कि टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स कौन से हैं. तो उसमें there was an option on webbed neck कि टर्नर सिंड्रोम is associated with webbed neck. Agreed. अगर 45XO होता लिखा हुआ तो that is also Turner's. Okay, Adnan, so tell me, Rameshwar, I am again saying this and I'll say this to everybody. बच्चे, you guys, चलो ठीक है, पैथोलॉजी में जो भी नए फैकल्टी ने जो भी पढ़ाया, जो भी नहीं पढ़ाया, जो भी था, कोई बात नहीं. जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ पढ़ा है या रिकॉर्डेड आप देखा है, यू गाइज आर कंफर्टेबल.
हम लोगों ने इजी वाले नीट पीजी के क्वेश्चंस भी 3 जो क्वेश्चंस थे हमने वो भी करे हुए हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, डू नॉट वरी, मतलब नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। द मोर पॉजिटिव वी आर इन लाइफ ना, जितना हम पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे उतना हमारे साथ अच्छा होगा। आई नो कि ऑन द एग्जाम वाला दिन वी गाइज आर ऑलवेज की शिट, कि 2 दिन आके पढ़ा के गए या कुछ गड़बड़ किया उन्होंने, ये वो, कोई बात नहीं। शुभम एग्रीड दोस्त। टर्नर्स के 2 क्वेश्चन थे, अगर एक में 45 100 था तो वो आंसर बन गया, एक क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर्स थे, इसीलिए मैंने क्लिनिकल फीचर्स की स्लाइड दिखा दी। इट इज एसोसिएटेड विद लो वेब नेक, वाइडली स्पेस्ड निपल्स, स्ट्रीक ओवरीज, दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया, cubitus valgus and peripheral edema at birth. This is Turner's. तो फीचर्स में हाँ विदाउट डायग्नोसिस। अच्छा मोहित परफेक्ट, तो क्लिनिकल फीचर्स लिखे हुए थे एंड उसके ऊपर कैरियोटाइप था 45 100। एग्रीड दोस्तों, एग्रीड। बट हमारा एक चीज ठीक है कि हमारा ये टर्नर्स के दोनों क्वेश्चन सही हो गए। सी एंड में ना हम लोगों को एक ही चीज से फर्क पड़ता है। आई नो, आई लव यू गाइज एंड आई लव यू एनफ टू से कि आई डोंट वांट टू सी यू एवर अगेन इन एन एफएमजी क्लास। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम और हम पीजी सेगमेंट में मिलेंगे, मतलब दिस इज अ फैक्ट। और ये चीज ना मैं बिल्कुल तुम्हें अपने मन से बता रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया पे आया हुआ था। सो इफ यू गाइस कैन रिकॉल कि क्या ऑप्शंस थे। फर्स्ट इज, आई विल टेल यू कि इसमें 6th कोडॉन, अगर कोडॉन म्यूटेशन कुछ लिखा हुआ है, पेशेंट रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड गॉट हाइपोटेंशन। आई नो, कोई बात नहीं, आई नो बीच में फैकल्टीज रिप्लेस करना गड़बड़ था, थोड़ा गड़बड़ था। जय श्री बच्चे, आई नो पर्सनली I will convey this. Next, Shubham, iron deficiency anemia, increased TIBC. We have that question. This was 2022 NEET PG question. Parkinson's syndrome. जैसे ही सिकल सेल एनीमिया का हमारे पास वो आएगा, ऑप्शंस आएंगे, I will be telling you. Then is लिखा हुआ था कि पार्किंसंस डिजीज है, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज, आइडेंटिफाई द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर। अगर तुम्हें पार्किंसंस में हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर नहीं भी पता, याद है हम लोगों ने लाइव क्लास में भी बॉडीज की लिस्ट बनाई थी। लुवी बॉडीज, पार्किंसंस डिजीज, लुवी इज पार्किंसंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Parkinson's, बच्चे, Shubham, Parkinson's is Lewy bodies. Next is 5-year child with lesion in right eye, flexner intestinal rosettes, Homer-right pseudo-rosettes, neuroblastoma, flexner intestinal rosettes, retinoblastoma. So Homer-right, अगर Homer-right rosettes आया है, then it is a case of neuroblastoma, flexner intestinal rosettes, retinoblastoma. एक ग्रे कलर का नो स्लाइड वॉज गिवन। अच्छा ठीक है, एग्रीड, पार्किंसंस में लेकिन लुवी बॉडीज लिखा तो हुआ था ना, सो इट इज अ केस ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा। नेक्स्ट, ग्रे कलर वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर ग्लूकोज मिक्स इज ग्रे कलर, तो इट इज G फॉर ग्रे, G फॉर ग्लूकोज, G फॉर ग्रे, G फॉर ग्लूकोज, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम फ्लोराइड। So this is Sumit दोस्त, this is the first recall. These are the options, these are the questions जो हम लोगों को बताए गए हैं. So this is what I am doing. I know some because the faculty was changed, so we are slightly low, but this is the recall that I have received. Next, which is अब ये वाला peripheral smear में I guess the image was, अगर सुमित मेरे दोस्त अगर नहीं आए क्वेश्चन, देखो तुम दो चीजों को रियलाइज करो सुमित, अगर ये वाले क्वेश्चन नहीं आए तो तुम मुझे बताओ क्या आया है. बाकी आई हैव 165 स्टूडेंट्स हु आर एग्रीइंग कि ये वाले क्वेश्चंस आए हैं, या जो ऑप्शंस मेरे पास नहीं है दे आर एडिंग टू द ऑप्शंस. लाइफ हम लोग ना हमेशा पॉजिटिविटी से जी सकते हैं. सो नेगेटिविटी में नहीं. सो वी विल हैव टू बी पॉजिटिव इन लाइफ. फ्लोराइड अगर सिने ऑप्शन में था, देखो अगर सोडियम फ्लोराइड या सिर्फ फ्लोराइड भी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो हमारा आंसर फ्लोराइड बन गया. एग्रीड. इमेज नहीं थी, ठीक है. गार्गी, इफ एनीमिया विद बिलो पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग,
इमेज नहीं थी, ठीक है। अगर वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल अगर उन लोगों ने वैसे लिखा हुआ है तो इट इज अ केस ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। देखो बच्चे, एक वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला पिक्चर अलग है। अगर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, इफ दिस इज अ सिंपल केस ऑफ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, मोर देन 6 लोब्स इन वन न्यूट्रोफिल, तो वो बन गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। एक क्वेश्चन जो मुझे अभी रिकॉल में शुभम ने बताया है कि टीआईबीसी वाज इंक्रीज्ड, उसमें साथ में सीरम आयरन लो या कुछ वैसे भी था। अगर सीरम आयरन लो लिखा है तो टीआईबीसी इंक्रीज्ड है, सो वो केस बन गया आयरन डेफिशिएंसी का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रोफाइल में एमी क्या क्या दिया था? ब्लड प्रोफाइल में टीआईबीसी अगर इंक्रीज्ड है, सीरम आयरन रिड्यूस्ड है, सो फटीग की हिस्ट्री थी। एग्रीड दोस्त। अगर एनीमिया है, सी इन अ केस ऑफ एनीमिया फटीग की हिस्ट्री थी। अगर वेजिटेरियन मदर है, सो सी आई कैन ओनली टेल यू कि दिस इज द रिकॉल वी गॉट। So proper recall questions with proper options, obviously. TIBC increased, that is iron deficiency anemia. Perfect. Transferrin भी reduced है, शुभम perfect दोस्त. Serum transferrin is reduced, that is iron deficiency anemia. देखो दोस्तों, इस रिकॉल का सीरम आयरन reduced, ferritin reduced, TIBC and transferrin ठीक है. So okay, megaloblastic anemia का नहीं था. I know थोड़ा सा ही यार मुझे नहीं पता, देखो मैंने वी विल हैव अ लुक, बट जो तुमने मुझे आयरन प्रोफाइल बताई है दैट वाज अ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखो दोस्तों, वेजिटेरियन मदर दूसरा क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन थे ना एनीमिया पे। सो वेजिटेरियन मदर हो गया B12 डेफिशिएंसी। देखो दोस्तों, सब कुछ छोड़ो, मैं कहता हूं सब छोड़ो, मुझे ना एक चीज पता है कि वी गाइज आर वॉरियर्स एंड हम लोगों को ना कोई दबा सकता है, कुछ कोई गलत कर सकता है, बट इन द एंड वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। आई कैन रिलेट टू योर सेंटिमेंट्स कि जिस दिन हम पेपर करके आते हैं ना, हम लोगों के सेंटिमेंट्स पीक पे होते हैं। एक आईडी का क्वेश्चन था, एग्रीड। तुम समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, मतलब आई दोज ऑफ यू हु नो मी पर्सनली ना, आई से दिस कि जब मैं पेपर करने गया था उससे 3 दिन पहले आई वाज सो सेंटिमेंटल कि मैं अपने मेस वाले से झगड़ लिया था कि व्हाई हैव यू मेड सच बैड रोटीज, रोटी बनानी नहीं आती तो मैं कुक कर देता हूं यार। अवर सेंटिमेंट्स आर एट इट्स पीक ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होगा एंड जिन्होंने जो भी किया जो भी नहीं, व्हाटसोएवर, वी आर गोइंग टू बी विनर्स इन लाइफ एंड नोबडी कैन स्टॉप अस ऑन दैट। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, बेस्टेस्ट ऑफ लक डियर फ्रेंड्स। Thank you.